آج ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور یوسف کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یوسف کیسے آزمائش پہ غالب آیا. سارے لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں, مسیحوں پہ آتی ہیں, اور دو طرح کی آزمائشیں بتائی گئی تھی. ایک جو ایمانداروں پہ آتی ہیں خدا کی طرف سے تاکہ ایماندار ترقی کرے, اور ایک شیطان کی طرف سے کہ ایماندار گر جائے. یوسف نہیں گرا تھا. آج لیکن ہم تھوڑا ہٹ کے بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے پوزیشن کمز ود اے پرپز, کہ جو پوزیشن تھی یوسف کی, ہمیں بس یہ پتا ہے کہ اس کو اتنا بڑا حاکم بن گیا, اتنا امیزنگ خداوند نے اس کو کہاں پٹ سے لے کر پیلس تک لے گیا, کنویں سے لے کر خداوند اس کو محل تک لے گیا. ہمیں صرف وہی باتیں یاد ہیں, لیکن سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں کہ اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے یوسف کو بہت سی جگہوں سے گزرنا پڑا. پہلے بھائیوں کی نفرت, اپوزیشن, بھائیوں سے لڑائی جھگڑا. وہ تو بیچارہ معصوم تھا, بھائی اس سے جیلس ہو گئے, اس کے پیچھے پڑ گئے, اس کو بیچ دیا. یوسف بہت ساری مشکلات سے گزرا, اور سب سے بڑی اس کی ٹیمپٹیشن کیا تھی, سب سے بڑی مشکل کیا تھی, جب پوٹیفر کی بیوی نے اسے آزمانے کی کوشش کی. وہ اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یوسف نے خداوند کے خلاف گناہ نہیں کیا. ایسے ہی نہیں کوئی پٹ سے, کنویں سے پیلس تک پہنچ جاتا. You have to be faithful in little things and big things. آپ کو وفادار رہنا ہے. ہم سب کہتے ہیں نا, جان دینے تک وفادار ہے تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا. وہ تو بات کی بات ہے, چھوٹی چیزوں میں وفاداری تو کرنی چاہیے نا. ہم لوگ تو سوری ٹو سے سم ٹائمز ہم تو دائرکی میں نہیں وفادار ہوتے. ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وفادار نہیں ہوتے, تو جان دینے میں تو بہت اگلی بات ہے, اگلے لیول کی بات ہے. یوسف خداوند پہ بھروسہ کرتا رہا. اس کی ایک ایگزامپل میں یہ دوں گی, یوسف کی جو اپنے خواب تھے وہ پورے نہیں تھے ہوئے بھی, لیکن جب وہ جیل میں تھا اس نے دو لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی. اب وہ یہ سوچ سکتا تھا میں کون ہوتا ہوں خوابوں کی تعبیر بتانے والا, میں نے جو اپنے خواب دیکھے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے. ہوئے میں کوئی بگ ڈیل نہیں ہوں, کیا میرے کوئی خواب پورے نہیں ہوئے, ان کے خوابوں کی میں کیا تعبیر بتاؤں. بٹ اس نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی, جس سے یو کین گیٹ دی آئیڈیا کہ ہی ٹرسٹڈ گاڈ کہ جو میرے خواب تھے وہ ضرور پورے ہوں گے ان گاڈس ٹائم. ہاللیلویا. آپ جوزف کی خداوند کی فیتھفلنس پہ یقین کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ وہ پریزن میں ہے, جیل میں ہے, اس کے اپنے خواب نہیں پورے ہوئے, اور وہ دو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر یہ ہے. Isn't that amazing? ہمیں خداوند کوئی پرپس دے اور تھوڑی سی ہارڈ شپس آ جائے, we start doubting God. ہم اپنی کالنگ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا سچ میں خدا نے یہی کہا تھا, کیا سچ میں خداوند کا میرے لیے یہ مقصد تھا. یوسف نے ایسا نہیں کیا. ٹیسٹ کو پاس کرتے 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 ٹائم آیا کہ وہ محل تک پہنچ گیا. فرام پٹ ٹو پریزن ٹو پیلس, کنویں سے جیل, جیل سے پیلس. پہلے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اے سے سیدھا زی پہ چلے جائیں, but there is a process. آپ کو فیتھفل رہنا ہے چھوٹی چیزوں میں. اب پوزیشن کمز ود اے پرپز. یہ جو مرتبہ ہے وہ کسی مقصد کے تحت ملتا ہے. یوسف کی لائف کا الٹیمیٹ پرپز کیا تھا, اگر آپ کسی کو یاد ہے الٹیمیٹلی کیا خداوند نے بڑا عظیم کام یوسف کے تھرو کیا. پوری بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر مصر میں لے آیا, وہاں سے نکال کر. ہاں جی, گوشن کے علاقہ میں یوسف کی وجہ سے پوری بنی اسرائیل قوم, اس ٹائم 70 لوگ تھے, وہ آ کے رہنے لگے. ہز پوزیشن, یوسف کو جو ایک پوزیشن دی گئی کہ وہ پیلس تک پہنچا, محل تک پہنچا, اٹ کیم ود اے پرپز. وہ ایک منصوبے, ایک مقصد کے تحت وہاں پہنچا. ہم لوگ کو پوزیشن کوئی مل جائے ہم لوگ مغرور ہو جاتے ہیں, ہم لوگ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں. بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, اگر آپ کو خدا نے کوئی رتبہ دیا ہے تو خداوند سے پوچھیں, خداوند اس پوزیشن پہ آپ کا کیا پرپز ہے میری لائف کے لیے. یوسف اگر اس ٹائم آزمائش پہ گر جاتا تو اپنی لائف کا اتنا بڑا پرپز کھو دیتا کہ ہی از دا ون. جوزف وہ انسان ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم کو پناہ ملی مصر میں. ہاللیلویا.
हालेलुया। उसकी लाइफ का पर्पस क्या था, उसकी पोजीशन का पर्पस क्या था? वन ऑफ द पर्पसेस वाज कि वो खुदावन के लोगों की हेल्प करे, और उसकी वजह से गोशन के इलाका में सुकून से बनी इस्राएली लोग रहते रहे। एक और शख्स के बारे में हम बात करेंगे, जदाऊन के बारे में। वो तक है चलिए पढ़ते हैं किज़ात 6:12 और 12:6। किज़ात की किताब उसका 6वां बाब 12वीं आयत। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब पूरा चैप्टर तो पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप ये स्टोरी को स्टडी करें, जो उस टाइम जदाऊन काम कर रहा था वो कोई जबरदस्त सूरमा वाला काम नहीं था। जो मिद्यानी लोग थे, मीडियनाइट्स थे, वो 7 साल से बनी इस्राएल को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उनके खेतों में से जो कमाई होती थी, जो फसलें पैदा होती थी, वो चुरा के ले जाते थे, उनकी भेड़ बकरियां चुरा के ले जाते थे। इधर जो जदाऊन है वो छुप के, जहाँ अंगूरों का रस निकलता है, वाइन प्रेस होती है, वहां पे वो बैठ के अपने वो कर रहा था, वीट को अपनी जो गंदम है उसको झाड़ रहा था छुप के। कोई जबरदस्त वाला बंदा तो नहीं लग रहा, लेकिन खुदावंद ने उसे कैसे बुलाया, खुदावंद ने उसे क्या कह के बुलाया? What were God's words? दोबारा पढ़िए प्लीज। ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब आगे जाके देखेंगे, आप लोग पूरा घर जाके चैप्टर पढ़ लें, संडे स्कूल में भी आपने पढ़ा है, शायद आपको आइडिया होगा। जदाऊन की लाइफ का भी एक पर्पस था, उसने खुदावंद के लोगों की हेल्प की उस टाइम। ये किज़ात जजेस की किताब में ये स्टोरी है। लेकिन समटाइम्स हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, डर हो गए। तो आप लोगों के लिए ये लेसन है कि खुदावंद अभी भी आपकी तरफ देख के ये नहीं कहते हैं डर को। गॉड सेइंग माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी वुमेन ऑफ गॉड। खुदावंद ने अगर आपको किसी चीज के लिए कॉल किया है, खुदावंद ने आपको किसी चीज के लिए अगर बुलाया है, तो अपनी करंट कंडीशन को देख के खुदावंद की कॉलिंग को पीछे ना कर दे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इधर ही डरपोक था बंदा, लेकिन कलाम में लिखा है God calls the things that are not as though they were। खुदावंद जो चीजें नहीं है, जो चीजें नजर नहीं आती, खुदा वो वहां तक देखता है। और खुदावंद के मंसूबे गिडियन के लिए, जदाऊन के लिए भी अच्छे थे। एक डरपोक इंसान को खुदावंद कह रहे माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी मैन। मैं जब ये स्टडी कर रही थी, मेरे दिल में ये आ रहा था कि सम ऑफ यू, आप लोगों पे जोसेफ की तरह मसीते हैं, आप डर के बैठ गए। आपने खुदावंद की कॉलिंग को, खुदावंद के पर्पस को पीछे छोड़ दिया। खुदावंद आज आपसे कह रहे हैं, यू आर अ माइटी मैन, आप माइटी वुमेन हैं, आप जबरदस्त हैं, आप ताकतवर हैं। यू कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। आप मसीह से की वजह से सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कॉलिंग को, या खुदावंद ने आपको जिस चीज के लिए कहा है कुछ करने को, डर की वजह से, किसी परेशानियों की वजह से आपने पीछे छोड़कर सोच रहे हैं कि अब तो मेरी लाइफ का पर्पस खत्म हो गया है, खुदावंद आपसे कह रहे हैं कि यू आर अ माइटी मैन, आई एम विद यू। तुम माइटी हो, तुम अजीम हो, जबरदस्त हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अब हम थोड़ा आज ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट का सर्वे करेंगे, ठीक है? स्टोरियां सबको पसंद है ना? एस्टर का किस को पता है? आस्तर मलका का सबको पता है? सबको पता होना चाहिए। आस्तर, जब आपको पता है कि बनी इस्राएल लोग खुदावंद के खिलाफ गुनाह करते रहे, बार बार खुदावंद के खिलाफ गुनाह करते रहे, नबियों के जरिए खुदावंद ने को इतनी दफा वार्न किया कि रिपेंट करें, खुदावंद के पास आ जाए, नहीं बाज आए। फिर ये हुआ कि नबूकदनेस्सर इस्राएलियों को बेबीलोन में ले आए अपने साथ, अपने मुल्क से, इस्राएल से उठा के उन्हें गैर मुल्क में ले आया। बाद में नस्लें चलती, क्योंकि उन्होंने तो 70 साल रहना था। इसी स्टोरी के दरमियान में एक बंदी आती है, आस्तर, ठीक है? आम लड़की, नॉट अ क्वीन। हमें फौरन जी पे पहुंचना होता है कि हम किंग बन जाए, हमारे पास बड़ा घर आ जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, बट इट हैज टू स्टार्ट स्मॉल। ये जो एस्टर मलका है, जिसको हम मलका आस्तर कहते हैं, ये कोई मलका पैदाइश से नहीं थी, स्लेव गर्ल। बनी इस्राएलियों को जब लेकर आए थे, बाद में उन्हीं की कौम की एक बंदी थी, आम औरत, आम इंसान, लेकिन खुदावंद का उसकी लाइफ के लिए पर्पस था।
اس کی لائف کے لیے عظیم پرپس تھا. لیکن اس میں منصوبے کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں. سم ٹائمز جب ہم ڈر کی وجہ سے, آزمائشوں کی وجہ سے اپنے اس منصوبے کو جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے ہم پورا نہیں کرتے, تو خداوند پتہ کیا کہتے ہیں, جو انہوں نے آستر سے مردکی کے ذریعے کہا, اگر تم کھڑی نہیں ہوگی تو I will raise someone else. اگر آپ نہیں کھڑی ہوگی میں کسی اور کو کھڑا کر دوں گا. But what if you have been called for such a time as this? لیکن کیا پتا کہ تم جہاں ہو وہ اس لیے ہو کہ اسی مقصد کی وجہ سے ہو. Let's read that actually. جی, آستر کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت. تب مردکی نے اس سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائے کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی, کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آ جائے گی, پر تو اپنے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی. اور کیا جانے گی تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے. ایسے ہی سب بولے, ایسے ہی وقت کے لیے, 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 for such a time as this. ایسے ہی وقت کے لیے. ایسٹر کوئین بنی اور ایک گندا انسان آیا, حمان, مارنا چاہتا تھا بنی اسرائیلیوں کو. اب ایسٹر تو کنگ کے پاس ادھر اس طرح کا حساب تھا کہ آپ ایسے کنگ کو اپروچ نہیں کر سکتے, بادشاہ کو سیدھا جا کے آپ اس سے نہیں درخواست نہیں کر سکتے. ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے, ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. تو ایسٹر ڈر رہی تھی, کیا تھا اسٹارٹ میں, تو مرد کی جو اس کا انکل تھا وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ ایسٹر یہ نہ سوچ کہ تو کوئین بن گئی یا ملکہ بن گئی تو بچ جائے گی, باقی اسرائیلی مر جائیں گے. تو نہیں کھڑی ہوگی تو خداوند کسی اور کو کھڑا کر لے گا. لیکن کیا پتا کہ تو کوئین بنی ہی اس لیے, for such a time as this. آپ ابھی اس ٹائم جہاں بھی ہیں, شاید آپ کسی پیلس میں نہیں ہیں, شاید آپ کسی محل میں نہیں ہیں, شاید آپ ڈاکٹر, انجینئر یا کچھ اور نہیں ہیں, آپ جس پوزیشن میں ہیں وہاں there is a harvest. وہاں ایک فصل ہے جس کو آپ نے ہارویسٹ کرنا ہے, ایک فصل ہے جو آپ نے کاٹنی ہے. خداوند کا آپ کے لیے منصوبہ ہے, اور اگر آپ چپ رہیں گے نا تو خداوند کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. لیکن what if you have been called for such time as this? کیا پتا خداوند نے آپ کو جہاں پہ آپ ہیں اسی مقصد کے لیے رکھا ہے کہ آپ خداوند کی گواہی دیں. ایسٹر کو یہی کہا نا, آپ نہیں بولیں گے تو کوئی اور بول دے گا, لیکن آپ اپنا مقصد کھول دیں گے. خداوند کا کام تو پورا ہوگا, خداوند تو عظیم ہے, خداوند کا کام نہیں رکے گا. گواہی کا آپ باعث بنے کسی اور کے لیے. ہاللویا, ہاللویا. ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سروے کر رہے ہیں, اب ہم جائیں گے یرمیہ کی طرف. یرمیہ کو جب خداوند نے بلایا تو یرمیہ کا پہلا رسپانس, خداوند اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جب تو اپنے ماں کے بدن میں تھا میں نے تجھے چن لیا, یہ وہ, اور ایک دم یرمیہ کا رسپانس وہ تھا جو سم ٹائمز ہمارا ہوتا ہے, ڈر والا, کنڈیشنز کو دیکھنا, آس پاس کے حالات کو دیکھنا. یرمیہ کا بھی فرسٹ رسپانس یہی تھا. پلیز پڑھیے یرمیہ 6:7. یرمیہ پہلا باب 6-7 آیت. اب میں نے کہا, ہائے خداوند خدا, دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا, یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں, کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. یرمیہ کا کیا رسپانس تھا, میں تو بچہ ہوں, I'm too young. ہمارے پاس بھی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. خداوند میں تو ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں میں گواہی نہ دے سکوں, بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. خداوند کا آگے سے کیا یرمیہ کو رسپانس تھا, say not that you're too young. نہ کہہ کہ تو بچہ ہے, جہاں میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا. اپنے ایکسکیوزز کو, لمیٹیشنز کو دور کرے. خداوند میں تو ایسے خاندان میں رہتی ہوں جہاں ہونی لڑائی ہے, میری تو جوائنٹ فیملی میں شادی ہوئی ہے, ہونے ہی مسئلے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہیے, ضروری نہیں کہ آپ کسی محل میں ہو, ضروری نہیں کہ آپ کسی بڑی پوزیشن میں ہو. آپ جہاں ہیں وہاں یو کین بی دی سالٹ آف دی ارتھ. وہاں آپ زمین کا نمک بن سکتے ہیں. نمک کیا کرتا ہے, فلیور دیتا ہے. نمک کے بغیر
खाना फीका होता है, खुदावंद कहते हैं आग दुनिया के नमक है। लेट योर लाइट शाइन, अपनी लाइट को जलने दे। यीशु ने कहा चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि चिरागान पर रखें। योर लाइफ इज दैट लाइट, आपकी जिंदगी वो लाइट है। लेट योर लाइट शाइन। आप लोग अपनी तरफ उंगली बढ़ा के कहें कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैं दुनिया का नमक हूँ, मैं दुनिया का नमक हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। मैं दुनिया का नूर हूँ। आपको पता है यीशु ने तो कहा कि वो दुनिया के नूर है, लेकिन आपको भी कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप ही लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। आपने भी डार्कनेस में शाइन करना है। आप जिस जिस एरिया में है, चाहे आप बस ड्राइवर है, चाहे आप सिंपल स्टूडेंट है, आपकी लाइफ से लोग इंस्पायर हो। आपके हेलो से गुड बाय तक उन्हें पता हो देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन, इस बंदे के बारे में कुछ डिफरेंट है। डिसाइपल्स जो टीनेजर्स थे, बहुत यंग लोग थे, 18-19 साल के थे शागिर्द, लेकिन क्या लिखा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तो दुनिया को अपसाइड डाउन कर दिया। ये वो लोग हैं who have been with Jesus। लोग पहचानते थे कि ये कुछ डिफरेंट नहीं, हमारे जैसे नहीं है, ना ही फैरिसीज की तरह, फरीसियों की तरह इतने पढ़े लिखे हैं, क्या खास बात है इनमें। फिर कहते हैं अच्छा ये वो है who have been with Jesus, जो यीशु के साथ रहते थे। उन्हें क्या अपार्ट किया, किस चीज ने उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ दिखाया? यीशु के साथ टाइम गुजारते थे। अब अभी आपको शायद आपका मकसद नहीं पता, आप कहते होंगे मुझे तो पता ही नहीं मैंने लाइफ में क्या करना है, बाइबल पढ़नी है ये तो पता है ना, रोज खुदावंद के साथ रफाकत रखनी है ये तो पता है ना। स्टार्ट फ्रॉम हियर, खुदावंद के साथ टाइम गुजारे। और ये यिर्मयाह जो इधर कह रहा है मैं बच्चा हूँ, मैं तो बहुत यंग हूँ, यही वो बंदा है जिसने इतनी परसिक्यूशन, इतनी परेशानियां सही, बिकॉज वो इतना बोल्डली जाके, दिलेरी से जाके बादशाहों को, लोगों को जाके कहता था कि रिपेंट करो, क्योंकि आने वाली है नबूकदनेस्सर, अपने लोगों को लाने वाला है। यही वो बंदा जो इधर डर हो गया है, यही बाद में जब उसने खुदावंद की बात को सुना और समझा, he tried to change the people, उसने लोगों को बताना शुरू किया कि अपने गुनाहों से तौबा करें। हम इसे वीपिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, आहोजारी करने वाला नबी भी कहते हैं। इसने आहोजारी की, इसने 2 किताबें ओल्ड टेस्टामेंट की इसने लिखी। अब हम एक और बंदे के बारे में स्टडी करेंगे, थोड़ा न्यू टेस्टामेंट की तरफ आ जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सबको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का, वो नहीं डरा, आपको भी पता है वो नहीं डरा, यहाँ तक कि उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो बादशाह को भी बता के बैठा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दिस इज द बोल्डनेस। खुदावंद के लिए बोल्डनेस होनी चाहिए। हम मरियम की तरफ जाएंगे, ये स्टोरी तो सबको पता है ना, यूसुफ और मरियम की स्टोरी। प्लीज पढ़िए लूक बात करिए जी, लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 38 आयत। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। Be it unto me according to your word। हम इतने sometimes हम लोग इतने stubborn होते हैं, खुदावंद यही चाहिए मुझे। अक्सर लोग प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आते हैं, यही चाहिए। खुदावंद क्या सिखाते हैं, कैसे दुआ करनी चाहिए? मेरी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो। हम उस चीज को मांगते रहते हैं जो शायद हमारी लाइफ का पर्पस ही नहीं है, खुदावंद का हमारी लाइफ के लिए प्लान ही नहीं है, और फिर हम किससे नाराज होते हैं? खुदा से। खुदा ने दुआ नहीं सुनी। आर यू आस्किंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड? क्या आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं? इधर मरियम मिडिल ईस्टर्न कल्चर, हमारे जैसे कल्चर की, शादीशुदा नहीं है, उसको फरिश्ता कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट होगी। आप समझ सकते हैं उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि लोग क्या बातें करेंगे, क्या परेशानियां होगी। मरियम का रिस्पॉन्स क्या था? मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। सो हमारे पास, मैं कह रही हूँ, एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ दे। मेरे पास तो भी जॉब भी नहीं है, थोड़ा सा पैसा आता है उसमें से भी मैं चंदा दूँ। इतने एक्सक्यूजेस मैं कह रही हूँ, जान देने तक वफादार है तो बात की बात है, छोटी चीजों में स्टार्ट बीइंग फेथफुल। मरियम ने अपने खुदावंद से कहा कि आपका कॉल मेरे अंदर, मे योर विल बी डन, जैसे जीसस ने कहा। और वो जो वर्ड था, जब मरियम ने उसको रिसीव किया, कलाम मुजस्सम हुआ। ठीक है, हालेलुया। अब हम
पसंद है। आप मुझे बताएं कि दाऊद ने एकदम से जाके जाति जूलियत को मार दिया था कि पहले थोड़े टेस्ट उसके भी हुए थे? कोई बताएगा उसने पहले क्या क्या किया? शेर को मारा, the lion, the bear and giant बाद में, lion, bear and the giant, गलायत को, जूलियत को बाद में। ऐसे ही नहीं वो बादशाह बन गया। हमें पोजीशन चाहिए, हमें उतनी बड़ी गाड़ी चाहिए जितनी किसी और के पास है। Start being faithful in little things. वो अपनी भेड़ों की इतनी अच्छी रखवाली करता था, खुदावंद ने कहा इतना अच्छा चरवाहा है, आप भेड़ बकरियों की इतनी अच्छी रखवाली करता है तो मेरे लोगों की कितनी अच्छी गलावाली करेगा। You see what I'm saying? Faithfulness. Let's read ज़बूर की किताब 70 and 71. ज़बूर 78 की आयत है 71। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इस्राएल की गलाबानी करे। दाऊद कहाँ पैदा हुआ था? किसी महल में पैदा हुआ था? कोई बड़ा स्कॉलर था? चरवाहा था। जहाँ पे वो था खुदावंद ने वहां से उसे उठाया और अपने बंदों की गलाबानी के लिए उसे चुना। जहाँ पे वो था, बी फेथफुल वेयर यू आर। आप जहाँ पे वहां पे फेथफुल रहें। अपनी जॉब पे टाइम पे जाएं, ना झूठ बोल के छुट्टियां लें। बी फेथफुल। बाइबल में लिखा है देयर इज अ टाइम एंड अ सीजन फॉर एवरीथिंग अंडर हेवन। हर काम का एक सीजन है, हर काम का एक वक्त है, हर काम का एक टाइमिंग है। हमें सीजन्स को नहीं करना, हमें बिल्कुल एंड पे जाना है। ऐसा नहीं है, खुदावंद ऐसे काम नहीं करते। बिफोर कलाम में यूसुफ के बारे में लिखा है कि इससे पहले कि यूसुफ की ड्रीम्स फुलफिल हो, खुदावंद टेस्टेड हिज कैरेक्टर। अभी आप जिस सीजन में हैं, समटाइम्स ऐसा होता है खुदावंद हमारे जरिए काम करता है, खुदावंद हमारे आसपास काम करता है। और कुछ सीजन्स में कुछ भी नहीं, जब हमें लग रहा होता हो रहा होता है ना कि कुछ भी नहीं हो रहा, विल्डरनेस सीजन है, बियाबान में हम जैसे खुदावंद आप में काम कर रहा होता है। जो क्वाइट सीजन्स हैं, जो ऐसे सीजन है आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ अमेजिंग हो ही नहीं रहा, नॉर्मल लाइफ है, कॉलेज, स्कूल, जॉब, ये समटाइम्स आपके ज़रिए बड़े मौजूद हो रहे होते हैं, समटाइम्स आपके आसपास बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे होते हैं, समटाइम्स आपके अंदर खुदावंद काम कर रहे होते हैं। आप दुआ अभी अपनी तरफ उंगली रखें। आपका एक खुदावंद, मैं अपने मंसूबा को जो आपकी तरफ से मेरे लिए है, मैं पूरा करूँगा। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, मैं अपने हस्बैंड की एग्जाम्पल दूंगी। लास्ट संडे उन्होंने गवाही दी थी कि वो म्यूजिक टीचिंग असिस्टेंट की उनके पास पोजीशन थी, और वो इस तरह आई। मैं थोड़ा बैक स्टोरी इसलिए बताना चाहती हूँ कि समटाइम्स रिस्क लेने चाहिए। अगर खुदावंद आपको कुछ कह रहा है ना, तो सर्कमस्टेंसेस को ना देखें, एक्सक्यूजेस को ना देखें। फिल्म उनके पास अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन मेरे स्कूल में एक ऐसी जगह है जहाँ टीचिंग असिस्टेंट्स ऐसी है, टीचिंग असिस्टेंट और टीचर की जॉब जैसे डॉक्टर और नर्स की। टीचिंग असिस्टेंट्स नर्सेस कह लें और टीचर्स कह लें डॉक्टर। समझ रहे हैं टीचिंग असिस्टेंट क्या होती है? बड़े स्कूल्स में ये पोजीशन होती है। अब वहाँ पे जहाँ उस टाइम पे मैं और मेरी बहन वहाँ काम करते थे अमेरिकन स्कूल में, वहाँ कभी कोई म्यूजिक टीचिंग असिस्टेंट रखा ही नहीं गया हिस्ट्री में। खुदावंद ने फिल्मों मेरे दिल में डाला कि ट्राई करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, यू नो इट डजंट हर्ट टू ट्राई। अब पोजीशन तो थी नहीं, फिल्मों ने अपनी जॉब छोड़ के कहा मैं वॉलंटियर करूँगा वहाँ पे। वॉलंटियर समझते हैं कि आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा, और वो सिर्फ उनको 2 हफ्ते के लिए शायद उन्होंने अलाउ की। वो कहते हैं हम वॉलंटियर्स अलाउ नहीं करते, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते हम अलाउ करेंगे कि आप हमारे स्कूल में फ्री में आके काम करें। अब फिल्मों ने उस चीज़ के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। अब हमारे माइंड में था कि इसके बाद तो जॉब मिल ही जाएगी, इतना अच्छा करेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। उस टाइम कुछ नहीं हुआ, हमने बाद में सोचा कि जॉब छोड़ के गलती तो नहीं की, लेकिन खुदावंद इतने फेथफुल है। उस 2 हफ्ते की वॉलंटियरिंग से, फ्री के काम से खुदावंद ने फिल्म उनको इतना सिखाया कि उनको एक
कॉल आई कि हमने कभी जिंदगी में म्यूजिक टीचिंग असिस्टेंट रखा ही नहीं, क्योंकि ये उस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया कि आपको एक असिस्टेंट चाहिए, लेकिन हम जिंदगी में पहली दफा रख रहे हैं ये पोजीशन। और गेस वो कौन बनता था जिसको रखा? फिलिमून को। अब आप एक और बात, मेरे स्कूल में जब भी कोई टीचर हायर किया जाता है उसके एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज होते हैं, सुपरिटेंडेंट से, प्रिंसिपल से, फिर ऐसी जो हमारी मेन मेंटर से इंटरव्यू होता है। और मेरा 2 मिनट का इंटरव्यू था और मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने लाइफ में कभी इतनी हंसी को ऐड किया है। अगर आप लोग को आवाज नहीं आई, वो कह रहे हैं कि स्कूल का प्रोसेस ऐसे है कि तीन इंटरव्यूज होते हैं, 3 डिफरेंट लोगों के साथ। फिलिमून का पहले इंटरव्यू में उन्होंने यस कह दिया और प्रिंसिपल ने खुद कहा कि हमने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। अब वो पोजीशन में फिलिमून फेथफुल रहे। म्यूजिक टीचिंग असिस्टेंट की ऐसी जॉब है कि यहाँ पे पाकिस्तान में टीचर्स को उतनी पे नहीं मिलती जितनी उस स्कूल में सिर्फ टीचिंग असिस्टेंट को ही मिल जाती है। फिलिमून वहाँ फेथफुल रहे और जैसे उन्होंने गवाही दी थी, इस साल जब न्यू ईयर स्कूल का अगस्त में शुरू होता है अमेरिकन स्कूल्स में, उन्होंने फिलिमून को कहा कि आप हमारे लिए फुल टाइम टीचर की जॉब करें। हालेलुया। मैं बताना क्या चाह रही हूँ, देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक वक्त है। जब फिलिमून ने फ्री में काम किया, फौरन जॉब नहीं मिल गई, इनको तकरीबन 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ा इवन म्यूजिक टीचिंग असिस्टेंट बनने के लिए। आप जहाँ पे फेथफुल रहे, खुदावन को पता है कि आपको, जैसे डेविड को एक आम चरवाहे की पोजीशन से उठाकर खुदावन को पता था कि कैसे उसको अपने लोगों की गलाबानी के लिए चरवाहा बनाना है, लेकिन बीच में टेस्ट्स आएंगे, आपके कैरेक्टर की डेवलपमेंट होगी। जब तक यूसुफ के कैरेक्टर को खुदावन ने टेस्ट नहीं किया, यूसुफ को पोजीशन नहीं मिली। आप ट्रायल्स में, परेशानियों में, मुसीबतों में खुदावन को ना भूल जाए। पौलुस रसूल का किस को पता है? सबको पता है। आबिद आपको भी पता है, मैं बस चेक कर रही हूँ आप सब उठे हुए हैं ना। सबको पता है ना पौलुस रसूल का। पौलुस रसूल ने खुदावन का जो उसके लिए मंसूबा था उसको पूरा किया। उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। लेट्स रीड इट प्लीज। 2 Corinthians 4:7 मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आप में से कितने हैं कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू वांट टू बी एबल टू से कि अपनी लाइफ के एंड में आप कह सके मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपने ईमान पर कायम रहा? कितने हैं जो कहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जब आप आसमान पे जाए खुदावन कहे वेल डन फेथफुल सर्वेंट, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, कि आप आसमान पे जाए खुदावन कहेंगे गुड जॉब। तो स्टार्ट वेयर यू आर, जहां पे आप अभी हैं। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ, जहां पे अच्छा आप खानदान में, हम सास बहू की रिलेशनशिप में अपनी नंद के साथ है, बहन भाइयों के साथ है, बी गॉड्स लाइट देयर। समटाइम्स हम लोग का एटीट्यूड इतना बुरा होता है घर में, लोग बाकियों के साथ मीठे होते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां पे है वहां खुदावन को खुश करें। अब ये नहीं मैं कही कि बॉन्डेज में फंस जाए कि मैंने खुश करना है। जब आपको खुदावन से प्यार होगा ना, आपको खुद ही से दिल जाएगा कि वो चीज करें जिनसे खुदावन खुश है। पौलुस रसूल ने एक यंग इंसान को जो मिनिस्ट्री में आया, तिमोथियस, उसको यही मशवरा दिया कि फैन तेरे फ्लेम्स को, स्टर अप द गिफ्ट दैट्स विद इन यू। तिमोथियस को पौलुस रसूल ने ये बताया कि खुदावन ने जो आपको कॉलिंग दी है, जो खुदावन का आपकी लाइफ के लिए पर्पस है, तो स्टर अप करें। जैसे पानी को हिलाते हैं ना, पानी हिलता है खुदावन। पौलुस रसूल के जरिए तिमोथियस को कह रहे थे कि आप अपने गिफ्ट को, अपनी नेमत को चमकाएं। हम नेमत को कैसे चमका सकते हैं? कैसे चमका सकते हैं अपनी नेमत को? लेट्स रीड इट एक्चुअली फर्स्ट, 2 Timothy 1:6। 2 Corinthians 1:6 इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। लाइफ की गवाही हो। आपको पता है रिसेंटली हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिन पे हम लोग फिल्मों के स्कूल में कुछ ऐसा हुआ कि जिन पे फिल्म
कुछ करते थे, उन्होंने कोई चोरी कर ली। अब जो शख्स गैर मसीही है, उसने क्या कहा, मैं इन चोरों के साथ खाना नहीं खाऊंगा। उसने आगे से ये कह दिया। आप बताएं कि उस बंदे ने खुदा के नाम को ब्लास्फीम होने दिया, खुदा के नाम की उसकी वजह से बेइज्जती हुई। मैं बार बार कह रही हूँ, शायद आप कोई बड़ी पोजीशन नहीं, योर कैरेक्टर कैन स्पीक, आपकी लाइफ से यू कैन चेंज लाइव्स। लेट्स रीड इट कि जेंटाइल्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं। रोमियो 2:24 आए, क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनांचे ये लिखा भी है, गैर कौमों के लोग खुदावंद के नाम पर कुफर बकते हैं। The Gentiles blaspheme the name of God because of us. अब जरूरी नहीं आप एस्टर की तरह किसी मुल्क की रिहाई का बायस बने, जरूरी नहीं कि आप यूसुफ की तरह एक कौम को बचाएं, जरूरी नहीं कि आप डेविड की तरह एक किंगडम के रूलर बने। आप कैरेक्टर, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलचाल, उससे खुदावंद को आप ऑनर कर सकते हैं। छोटी चीजों में वफादार हैं। जो गैर मसीही है वो आप अकेली शायद बाइबल है जो वो पढ़ेंगे, शायद आप कभी हार्ड कॉपी या मतलब उनको ये ना कह पाएंगे भाई बाइबल पढ़ो। आपकी लाइफ शुड बी अ बाइबल, आपकी जिंदगी बाइबल हो। आपका अभी अगर आप कहते हैं खुदावंद मुझे तो अपना मकसद ही नहीं पता मेरे लाइफ में क्या करना है, मैं आपको बताऊं आपका मकसद क्या है इस टाइम। बी अ गुड क्रिश्चियन, लव गॉड, लव पीपल, अच्छे मसीही बने, खुदावंद की तरह जिंदगी गुजारे। लोग खुद आपसे इंस्पायर हो के आपके पास आए कि भाई आप हर टाइम क्यों खुश रहते हैं। जब कोविड आया, मेरे कुछ कॉलीग्स ने मुझे मैसेज किया, व्हाई आर यू नॉट अपसेट, आप क्यों परेशान नहीं, आप क्यों इतने सुकून में। और फिर खुद से दरवाजा खुलता है उनको कलाम सुनाने का कि हमारी जिंदा उम्मीद यीशु है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मैं दोबारा सुनिए, क्योंकि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। आप चाहते हैं कि खुदा के नाम पे कुफर बका जाए। आप चाहते हैं कि आपकी वजह से लोग कहेंगे मसीह तो हमारे जैसे ही होते हैं क्या, व्हाट्स द डिफरेंस। व्हाई वुड दे वांट अ गॉड उन लोगों का जो उस गॉड को ऑनर ही नहीं करते। आप डिफरेंट तो बने, आप में और उनमें कुछ फर्क तो हो, ताकि दे वुड वांट व्हाट यू हैव, ताकि उनको वो दिल चाहे कि हमारे पास भी वो हो जो इनके पास है। कितने खुश हैं ये हर टाइम, कितने सुकून में ये हर टाइम, ये अपना काम कितने दिल से करता है। एक दफा मेरी बहन अब इसी अमेरिकन स्कूल में जब काम कर रही थी, वो लड़की ने, मेरी बहन जॉब छोड़ के चले गई, उनकी शादी हो गई, जॉब छोड़ के चले गई। उस लड़की बहुत पुराना, उस बात को अरसा हो गया, मुझे याद नहीं थी। हम मीटिंग के लिए बैठे हुए स्कूल में, और जो एनी के साथ काम करती थी लड़की, वो दूसरों को बता रही थी यार ये तो बहुत फर्क है। तो मैं खुद हैरान हो गई किस बारे में बात करी है। कहती मैंने एनी को छुट्टी चाहिए थी, तो मैंने उससे कहती सिक लीव ले लो कि कह दो तुम बीमार हो। तो एनी ने आगे से कहा लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। कहती मैं हैरान रह गई कि उसने आराम से कह दिया, मैं होती मैंने आराम से कह दिया ना मैं बीमार हूँ, मैंने छुट्टी ले लेनी थी। उस लड़की को वो बात साल, मेरी बहन की शादी होने के सालों बाद भी याद रही, और वो लोगों को बता रही दीज पीपल आर डिफरेंट। और बाद में ऐसे ही लोग होते हैं जो फिर आपके पास आते हैं कि हमारे लिए प्रेयर करें, हमारे लिए प्रेयर करें। व्हाट डू यू हैव व्हाट आई डोंट हैव। आपके पास ऐसा क्या है जो मैं मिस कर रही हूँ, आपके पास ऐसी क्या उम्मीद है जो मुझे नहीं समझ आ रही। आप जिस मुल्क में रहते हैं, अंडरस्टैंड आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप में कैरेक्टर से गॉड विल ओपन द डोर्स फॉर यू। खुदावंद आपके लिए खुद दरवाजे खोलेंगे। हालेलुया। तो आज का कलाम किस किस को समझ आया? आज के कलाम से क्या सीखा? बी फेथफुल वेयर यू आर। आप जहां पे हैं फेथफुल रहें, आप जहां पे हैं वफादार रहें। और खुदावंद को पता है कि आपको चरवाहे भेड़ों बकरियों चराने से पैलेस तक, बादशाह तक कैसे पहुंचाना है। खुदावंद को पता है कि आपको एक छोटे से स्वीपर की जॉब से आगे कैसे लेकर जाना है।